Good morning, students. So, today is the class of risk and insurance management, and we have already carried the unit 2. In the last class, we have discussed about the risk identification process. Okay. Today we will discuss about the risk assessment. It is one of the second steps of that is our in of the second unit. Okay. So what is that? The risk assessment. What do you mean by the risk assessment? So, the first step of the risk process, we have discussed about the identification. Okay? So, in the risk assessment, in the assessment means what happened? Assessment means carefully examine. Carefully examine. Why do you have to carefully examine? That is, we have to make a clear, careful examination of what in our work. Either the work could cause harm to the people or not. If there is a risk, then what are the necessary steps should be taken? Means we have to talk about the precautions to be taken. Okay. That is another step. Another meaning we can say that is the workers and others have the right to protect their harm. That we know very well caused by the failure. Because something, what happened? एक घर में आग लग जाता है, घर के अंदर अगर कोई होता है तो हम घर को जाते जाते अगर हमारे ऊपर भी मुसीबत आ सकता है कभी भी. बहुत सारे पिक्चर में देखे हैं, बहुत सारे that is in our some life that is in situations where that much of arises when we are thinking about the risk. So, हमें जितना भी केयरफुली एग्जामिन करने से पहले करते रहेंगे, if we go for the that is examining the detail of the risk after using the or identified process. First of all, you see that is either in our surrounding it is some problem or not. Either it is also problem to us or not, that we have to think it, because सक्सेस होगा तो रिस्क को ओवरकम कर पाएंगे तो वो अच्छा है, बट कभी कभी रिस्क फेलियर हो सकता है तो वो हार्मफुल हो सकता है. अभी देखो, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, जो कोरोना के लिए, जो कोविड-19 के लिए, अभी तक कोई भी दैट इज व्हाट हैपेंड वैक्सीन नहीं आया. गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग दैट इज to produce the vaccines, but first of all they will utilize in the human. They will first make a trial in the human. So unless the human being को ट्रायल ना करने से पहले वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे. वो असेसमेंट ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो कितना प्रभाव डालता है वो देखेंगे. अगर बिना प्रमाणित होकर या बिना एविडेंस से, बिना असेसमेंट से अगर वो मार्केट को वैक्सीन छोड़ देंगे और वैक्सीन को उल्टा असर हो गया तो it will come to the negative impact means will responsible, the government will responsible. Okay, because that is the failure of the project.
the failure of the inspection, that is the what happened, that is the assessment of the things. It may cause many hazards. Okay, so my dear students, so what happened? Whatever may be, that is you have to assess properly. अभी देखो एक डॉक्टर के पास अगर डॉक्टर एग्जामिन ठीक से नहीं करेंगे तो अगर कोई रंग दवा दे दिए या वो मैंने जो कि मैंने वो डिजीज के लिए वो रॉ मेडिसिन ठीक नहीं होगा तो वो गलत असर हो सकता है. ओके, सो इसका मतलब बेटा हम क्या करते हैं, ठीक से असेस करना पड़ेगा, ठीक से हमें उसका परिणाम को निकालना पड़ेगा, उसका जो भी असेसमेंट जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिवली आना चाहिए. एक्सीडेंटेड इल हेल्थ जो भी होता है ये रूइन करता है लॉसेस, रूइन करता है पूरे टोटल लाइफ को, बर्बाद करता है लाइफ को. चाहे वो बिजनेस में भी कभी अगर बिना बिजनेस ज्ञान ना होकर अगर बिजनेस में उतरेंगे विदाउट नॉलेज, इफ यू डू द बिजनेस जनरली विल bear the loss. And how that loss should be overcome? Because वो पापा से पैसा लो या बैंक से क्रेडिट लो, वो जो भी कुछ यूज किए, जो भी मेथड, that is risk to be borne by us. And risk is borne by us, and risk have to be, that is given a, that is what happened. So many problems to us. So many, that is अगर बिना सोचे समझे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, वो पैसा अगर डूब गया, मतलब वो पूरा फैमिली को भी वो दैट इज उसमें ही ला सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम होगा वो खुद प्रॉब्लम में झूलते रहेंगे और बाकी सबको भी वहीं पे झुलाते रहेंगे. ये हमें कोशिश करना है. दैट इज बिफोर, दैट इज व्हाट स्टेप्स हैव टू टेकन इन ऑर्डर इन सपोज बाय असेसिंग if some result will not in favor of, means what steps will be taken, that also we have to think of it. So, my dear students, when you're discussing about the assessment of risk in our workplace, so gradually you have to find out some steps, that is what we have to think it. So, step 1, that is identify the hazards. Step 2, decide who might be harmed. And how. Step 3, evaluate the risk. Decide on the precautions. Step 4, record your findings and implement them. Then step 5, review your assessment and print the necessary. देखो बेटा, this is the very essential steps that we have to adopt when we are assessing the risk.
हमें किसी और के एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए। जब असेसमेंट हो रहा है ना, ये अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, जो कोविड-19 का एक साधारण एग्जाम्पल हम लेंगे, ये जब डिस्कस करते रहेंगे। स्टेप 1, पहले आइडेंटिफाई करेंगे हजार्ड्स को। ऑलरेडी वी हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क प्रोसेस, बट कितना डेंजरस है उसको भी मेजर करना है, मैं बताऊंगा। देन इसके बाद यू हैव टू डिसाइड दैट इज हु माइट बी हार्म, ओके, एंड हाउ, किस पर आधार कौन हार्म हो सकता है और कितने हजार होंगे, कैसे हजार होंगे, वो भी देखना चाहिए। फ्रॉम द माइट द डेंजरस शुड बी फेस्ड बाय द फ्रॉम द hazards. Step 3, you have to evaluate the risk and you have to, that is, decide what should be the precautions to be taken. Step 4, you have to record our own findings and you have to use them. And step 5, and जब assessment करते जाएंगे उसे हमें क्या रिव्यू करना चाहिए, रिपोर्ट देना चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमें, that is you have to collect and you have to maintain in a proper manner. So first, my dear students, the first step, that is the what? Identify the hazards. The step 1, first when you are going, when you are meeting some work or involving in a risk full of work, there we have to, at that time you have to think it. That is, what the hazards will be arise from these things. Okay, we have to find it. How many peoples, how the peoples could be harmed from this risk or from my job. When we work or when you work in a workplace every day, you have to think it, that is, it कभी भी गलत हो सकता है। अगर कुछ गलत हो गया मतलब ये पूरा ध्वंस भी हो सकता है, पूरा डैमेज भी हो सकता है, वो भी देखना है। एक एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे, बिना जाने समझे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए अगर कुछ गलत हो गया मतलब कितने बर्बाद होंगे, कितना डैमेज होगा लाइफ, कितना डैमेज होगा प्रॉपर्टी, वो हमें असेसमेंट करना चाहिए और वो हजार्ड है। ओके, दैट इज, बट आई एम टेलिंग सम टिप्स वी हैव टू टेक, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाइल आइडेंटिफाइंग द हजार्ड्स। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरवाइज करना है, किसको? अवर वर्क प्लेस को सुपरवाइज करना है, बिकॉज we have to find out what reasonable expected cause are, कितना हार्म हमें हो सकता है वो निकलना है। we have to find it, how much harm should be, that is it will be happen to us. घर में सांप को पालना डिफिकल्ट है। एक एग्जाम्पल, जो सपेरा लोग होते हैं ना, सपेरा होते क्या करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं। वो घर में जब सांप रखते हैं, उनके जो विषैली जो जहरीला दांत होता है उसे निकाल देते हैं। कभी वो चोट मार दिया तो उनका फैमिली को बर्बाद हो जाएंगे। तब भी होकर भी कितना प्रिकॉशंस लेते हैं हमें वो देखना चाहिए। आजकल अभी जो पेंडेमिक जो कोविड-19 चल रहा है, how the government is taking so many precautions, government is also warning so many things, not to move outside, wear mask. Why? There is a 144 that is चल रहा है, all are, that is boundly they are staying at home. The government is, or that is the administrator is always pushing. Why these things? Because उनको पता है, वो एसेस किए कौन से सीजन में कौन से टाइम पे दैट इज कोरोना का प्रभाव हो सकता है।
इसी को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कोरोना को भी हमें कंट्रोल कर पाएंगे. सो आस्क सजेशन, सेकंड पॉइंट है, सजेशन को हमें एम्प्लॉय के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए और हमें नोटिस करना चाहिए कि दैट इज दिस टाइप ऑफ हार्म में भी हो सकता है. अभी देखा ना, कोई भी अगर मशीनरी पार्ट, कोई अगर कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जाएंगे, वो बोलते हैं दैट इज व्हाई डोंट कम हियर, डेंजरस है. एक स्कल मार्क दे देते और दैट इज बोन क्रश करके स्कल मार्क ऊपर दे देते. ये जो बोन क्रश करके जो स्कल मार्क दिए, इस आइडेंटिफाई करते तो हार्म इज देयर. अगर ज्यादा हार्म हो सकता तो एक सिक्योरिटी गार्ड को भी वहीं पे तैनात कर देते हैं. वो सिक्योरिटी गार्ड और तैनात रह जाता है, इसका मतलब है दैट इज किसी को अलाउ ना करने के लिए. बहुत हार्म हो सकता है. ओके, एंड अनदर वी हैव टू that is get the guidance from others, that is information that we have to collect from the others, where the others are taken places and how to control, उसे भी हमें देखना चाहिए कंट्रोल कैसे करना है. And another that is what happened, we have to provide the free services for managers in the workplace so that they should come and visit and supervise us. And another that is they will talk about the healthy and the safety. And regarding also we have to talk about the trade associations. They will also provide some helpful guidance. And regarding the members also, that all the things we have to discuss it, because generally अभी जो 3-4 महीने हुआ था, जो वाइजैक में एक कंपनी में जो कि एक गैस निकल आया, बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते उठते मर गए. कैसे हुआ? ये लापरवाही के कारण से होगा. बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम्स अरेंजेस इन द मशीन. ठीक से सुपरवाइज नहीं कर पाए, ठीक से कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस भी उनके पास नहीं था, शायद ये हो गया. बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, दे टेकन द प्रिकॉशंस एंड द पीपल शुड सेव. बट जिनका कुछ लॉसेस हुआ वो कैसे सह पाएंगे? ओके, हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, कैसे बहुत दुखदायक होता. ओके, हमें मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन को चेक करना चाहिए, उनको डाटा शीट जो केमिकल्स इक्विपमेंट यूज करते हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है. बेटा देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, तुम्हें अगर बड़े होकर अगर कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना है तो तुम्हें का देखोगे वहां पे कैसे का बोर्ड लगा हो. मैं जब इमामी में था, जस्ट एट द एंट्रेंस गेट हजार्ड रिपोर्ट लिखा हुआ था. ये जो हजार्ड रिपोर्ट, सेफ्टी रिपोर्ट, ये लिखा हुआ है, 2 पार्ट में लिखा गया, कितना प्रिकॉशंस लिया गया, कितना ये हो गया, कितना डेंजर, कितना इफेक्टेड हुए, कितना नहीं हुए. एवरी डे रिपोर्ट को दिया जाता है. एक तरफा एवरी डे दे आर हैविंग द रिपोर्ट, एंड अनदर पार्ट दे पुल, दैट इज सिंस फ्रॉम दैट इज द कंपनी एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज आल्सो अनदर रिपोर्ट. Every day there is changing, some that is changing are there. Some also that is what happened. Find find some problems, also hazards also. They are maintaining the records. That I will tell you. Okay. And you have to look about the past records regarding the records of the accident taken place and how that is. They have identified the and what precautions they have taken also, that we have to think about. Okay, so this is the what happened, identify the hazards. क्योंकि hazard को अगर कंट्रोल करना है तो hazard के रिकॉर्ड को ही जाना चाहिए. hazard कहाँ पे हुआ है उसे देखना चाहिए, ताकि उस आधार पर हम कुछ कर सकें, नहीं तो okay. Then second, we have to think about that is decide who must be harmed, who might be harmed and how. अगर hazard हुआ, अगर रिस्क हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कौन यहाँ पे
किसको यहाँ पे हार्म हो सकता है हमें देखना चाहिए, और कैसे वो हार्म होगा वो भी देखना चाहिए। वो सभी हमें स्टडी करना प्रॉपरली। देखो, बिकॉज वी नो दैट hazard is for each hazard we need to be clear, that is about the thing what who might be harmed, because it will help in identification. The best way of managing the risk, मैनेजिंग, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम का परिणाम नहीं होगा, परिणाम को रीड नहीं कर पाएंगे, परिणाम का अगर स्टडी नहीं कर पाएंगे, तब रिस्क को स्टॉप नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेस्ट एवरीवन, बट रेदर आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ द पीपुल्स और आइडेंटिफाई द कॉजेस टू गेट हार्म, and what type of injury is there, where to see it, and what type of injury or the ill health that may occur, might be occur, and who will be in the great tragedy or who will be, might be in dangerous position, that we have to find it. Okay. So here also you have to remember it while we are deciding who might be what harm and how. If some work that is have a particular requirement, at that time we have to see that is the worker who is working, their experience or inexperience, they are the new worker or the old worker, because जो new worker है उनको लिया हजार, कुछ उनको पता नहीं है क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनका हमें गाइड करना है। Every step of work we have to inspect them, every step of work we have to examine them, because कोई एक्सपीरियंस वर्कर वहीं पे काम करते रहेंगे क्या, या कोई ओल्ड एम्प्लॉय वहां पे काम करते रहेंगे, तो हम उन्हें उनको पता होगा यहाँ पे डेंजरस हो सकता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज अनदर वी हैव टू टेक इन द माइंड द विजिटर्स, क्लीनर्स एंड द कंट्रैक्टर। बच्चों, लास्ट टाइम जब हमें गए थे स्टडी टूर में, हमारे पास मिस्टर राव जो गाइड थे, वो कैसे कर रहे थे शिपयार्ड में, वहां पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, क्यों? उनको पता है कहां पे आजाद है, कहां पे रिस्क है। That is, we have to identify, that is, we have to work according to their instructions in order to have a safety and work effect जो कि होता है बेटा, जो कि present average, how much they have working effect, the stop and talk to them. The members of the public also, it will be hurt by our the activity, that we have to think it also. So this is the things what we have to discuss, that is what happened, how, that is the risk when we are discussing about the whoever may be the harm and by how much. The third point, we have to discuss about the risk, evaluate the risk and what precautions we have to take it. Evaluation is another topic is there, we will discuss, but here also we have to see it. That is, जब स्पॉटेड किए हजर को हमें डिसाइड करना है व्हाट टू डू। कुछ विपत्ति आता है तो हमें डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, तब जाकर हमें उसे कंट्रोल कर पाएंगे। साइड बाय साइड यू हैव टू सॉल्व द लॉ, नियम कानून को भी देखना चाहिए, बिकॉज किसी को बचाने के लिए हमें इलीगल वर्क नहीं कर पाएंगे, हमें लॉफुली एक्ट करना चाहिए, बिकॉज लॉ इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। लॉ बाइंड्स द हैंड ऑफ द बिजनेस पीपल एंड एवरीवन टू एवरीवन। किसी एक को बचाने के लिए हमें किसी को नहीं मार सकते, एक चींटी भी नहीं मार सकते हैं,
वो सोचना चाहिए। चींटी भी बच जाए, हाथी भी बच जाए, एक आदमी अगर मुसीबत है वो भी बच जाए और ये भी बच जाए, उसको मारकर हमें उसे नहीं बचा पाएंगे, ये कभी नहीं होता है। खुद जाओ, खुद जान चले जाए, ये बाद में तुम्हें पूछे या ना पूछे, बट हमें सोचना चाहिए। जब आप कुछ काम करते रहेंगे, दैट इज कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहेंगे, कुछ हाजत को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेना है वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बहुत सारे गुड प्रैक्टिसेस है, दैट इज HSC वेबसाइट है, ओके। एंड अनदर दैट इज Infoline, and another workplace health connect होना चाहिए। First of all, we have to think it, that is what is already done and what we are already doing, and we have to think how we have to control these hazards where we have in that place and facing the risk, or where we have working, or mostly that for the organizations. We have to compare this with the good practices, okay, and we have to see that there should be more what we have to doing it for the ourselves or for the others. इसलिए कुछ टिप्स है जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए, कुछ फैक्टर्स है जो कि हमें अपने पूछना चाहिए, खुद को पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? जब एक पत्थर एक एक कांच में बना हुआ घर को फेंकेंगे, वो टूट जाएगा। कोई हमारे घर को वैसे पूछेंगे तो फेंकेंगे, हम भी हमारा घर भी टूट जाएगा। सो किसी को नुकसान देने से पहले हमें क्या अपने बारे में सोचना है। एक एग्जाम्पल क्या है? दैट इज जब एक गोबर पड़ा हुआ है, अगर उसमें एक पत्थर डालेंगे वो गोबर हमारे ऊपर मुंह से आकर गिरेगा। इसका मतलब हमें दैट इज यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, यू हैव टू इवैल्यूएट इट। क्या ये मुसीबत मुझे भी हो सकता है? क्या वो मुसीबत दूसरे को भी हो सकता है? क्या हो सकता है? तो कैसे प्रिकॉशन लेंगे? जैसे आज कोविड-19 सबके मुंह में ताला बांध दिया, कपड़ा बांध लिया, मास्क लेकर जाना चाहते हैं। अभी कोई भी जो भी जाते हैं मास्क डाले, कोई भी डॉक्टर नहीं आते हमें देखने के लिए। Various precautions they are taking, how they are wearing the kit, protecting kit. Why these things? So हमें पहले सोचना चाहिए, हमें अपने आप को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए। कैन यू गेट राइट ऑफ द hazard टुगेदर? हम या दूसरे को कोई भी है, अगर नहीं तो हाउ कैन कंट्रोल द रिस्क that which may be harm, which is unlikely. अगर कुछ कंट्रोलिंग रिस्क होता है तो क्या प्रिंसिपल हमें दो सोचना चाहिए, या हम बचा सकें खुद को या दूसरों को, अगर नहीं तो क्या कंट्रोल किया गया है, ताकि हम वहीं पर रहेंगे, बाकी भी वहां पर रहेंगे, बट रिस्क को हमें दबा सकेंगे। उसको भी हमें सोचना चाहिए। When controlling risk and apply the principle below, that is we have to follow some orders. What are the orders? Right? So generally, जितना रिस्क कम होगा वो हमें सोचना चाहिए,
उसका ऑप्शन भी हमें ढूंढना चाहिए ताकि वहीं पे स्विच ऑफ कर सके। और हमें बहुत सारा प्रिवेंट करना है, जो कि प्रिवेंट एक्सेस टू द hazard, जो कि हमें गार्डिंग करना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइज करना है हाउ टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ द hazard लेक को, और उस पर बैरियर डालना है। जो बैरियर डालने से पेडेस्ट्रियन और ट्रैफिक के बैरियर में जो होता है ना, उस तरह वहाँ पे ना जाने के लिए, जैसे ट्रैफिक के सामने कुछ दैट इज जेब्रा क्रॉसिंग होता है, नहीं तो कुछ भी होता है, कैसे बैरियर, वो है बैरियर, हमें उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। व्हाई दिस थिंग वी हैव टू इश्यू द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी हमारा कुछ होता है, जैसे कोविड-19 जो डॉक्टर होते हैं वो कितना प्रोटेक्टिव रहते हैं, वो कितना दैट इज किट पहनते हैं, माने वो घर को नहीं आते, उनको सैल्यूट देना चाहिए। वो घर नहीं आते बट तब भी वो फाइटिंग कर रहे हैं, मरीजों को साथ भी फाइटिंग कर रहे हैं, उनको भी मरीजों के रिस्क भी है, वो डॉक्टर के रिस्क है। जो बाकी सब स्वस्थ है ना, वो थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है, वो सोचना चाहिए हम कितने, अगर हमें दैट इज अनलॉफुल, दैट इज कानून को नहीं मानते हैं, हमें इधर उधर घूमते हैं बिना प्रिकॉशंस में, तो दैट इज बेसिकली व्हाट हैपन, वी आर इन डेंजर एंड साइड वी आल्सो टेकिंग ऑल द डेंजर्स, एंड वी हैव टू प्रोवाइड द वेलफेयर फैसिलिटीज, ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वॉशिंग फैसिलिटीज करना चाहिए। अभी जैसे हो रहे कोविड-19 में जहाँ भी आओ, मैंने बाहर घूम कर आ रहे हैं तो ड्रेस को भी धोना है, वॉशिंग करना है, हाथ को 20 मिनट तक हमें कंटिन्यूसली वॉशिंग करनी है। ये क्यों है? बिकॉज फर्स्ट एड लेना जरूरी है, फर्स्ट एड होना, फैसिलिटीज होना जरूरी है। फर्स्ट एड से हम कुछ बचाव कर सकते हैं, कुछ अगर रिस्क हुआ तो कुछ कंटामिनेशन हुआ तो हमें उससे बचा सकते हैं। आजकल इम्प्रूविंग जो हेल्थ होता है, जो सेफ्टी जो होता है, ये मीट करता है कॉस्ट ऑफ द लॉ। बहुत सारा कॉस्ट एक होता है ना, पॉलिसी बाजार में जैसे होता है, हमारा जितना सेविंग होता है ना मेडिकल में जाने से पहले, वो रातर स्पीड से जाए होता है, और सेविंग जो होता है वो खर्चा पूरा हाई चला जाता है और सेविंग पूरा नीचे आ जाता है। वो सही होगा, उसका हमें प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, बिना प्रिकॉशंस हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, so this is one of the what we have to discuss, that is the what, that is the evaluate the risk, deciding on the precautions, and after that what happen, that is in the next class we have to discuss about, that is how much that the risk, we have to find it, record the things and implement them, and we have to find that is how the risk is spent and updated. It is very necessary for the legal risk. These two steps we will discuss in the later or the next classes. Okay, thank you, stay home, stay safe, have a nice day.